Now, message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 24th of June 2019 adopted the following motion: that a committee of both the houses, to be called the Committee on Welfare of Other Backward Classes, OBCs, be constituted, consisting of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, to be elected in accordance with the system of proportional representations by means of single transferable vote. B, that a minister shall not be eligible for election as a member of the committee, and that if a member, after his election to the committee, is appointed a minister, he shall cease to be a member thereof from the date of such appointment. C, that the chairperson of the committee shall be appointed by the Speaker from amongst the members of the committee. That the functions of the committee shall be to consider the reports submitted by the National Commission for Backward Classes under Article 338B of the Constitution and to report to both the houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government, including the administration of the Union Territories. To report to both the houses on the actions taken by the Union Government and the administration of the Union Territories on the measures proposed by the committee. 3, to examine the measures taken by the Union Government to secure due representation of other backward classes, particularly the most backward classes, in services and posts under its control, including appointment in the public sector undertakings, statutory and semi-government bodies, and in the Union Territories, having regard to provisions of this Constitution. To report to both the houses on the working of the welfare programs for the other backward classes in the Union Territories. Next, to consider generally and to report to both the houses on all matters concerning the welfare of other backward classes which fall within the purview of the Union Government, including the administration of Union Territories. And next, to examine such matters as may be deemed fit by the committee or are specifically referred to it by the House of the Speaker. Point 3, that the members of the committee shall hold office for a period of 1 year from the date of the first meeting of the committee, which shall be reconstituted thereafter for 1 year at a time according to the procedure described in para 1 above. That in order to constitute a sitting of the committee, the quorum shall be 10. That in all other respects, the rules of procedure of this House relating to parliamentary committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make. And 6, that this House do recommend to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the committee and communicate to this House the names of members elected from amongst the members of the Rajya Sabha to the committee as mentioned above. Shri Vishwajit Daimbre. Dhanyavad, sir. Manganang Deputy Chairman, जोंनि जि हादोरगिरिनि बिबुंथि जॉइंट पार्लियामेंट सेसनाव होदोंमोन बेवहाय बिथाङा जिखिनि जोंनि हादोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बे 5 बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोर बा बे बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोरनि बागै रायखांदों बियो जोबोद ओंथि गोनां आरो आं सानो बेफोरखौ गमामायै जुदि मावफुङोब्ला जोंनि हादोरा जोबोद दावगाखांगोन आरो मानगोनां सार बिथाङा बिथांनि जितु बिबुंथि बे बिबुंथियाव जोंनि भारतनि जायखौ सा सानजा ओनसोल बा सा सानजा भारत होननानै बुङो बे ओनसोला दिनै गोबां बोसोर जौगाखांनायनि बिथिङाव उन जानानै दङ आरो बेखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै बे सरकारा जेरैखि जाया सा सानजा भारतखौ बे गासै भारत हादोरजोंनो समानै दावगालांहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा बुङो दा बे बेलायाव आं माखासे बाथ्रा बुंदेरनो नागिरदों जे दिनै सा सानजा भारत होनोब्ला
जों गिबियाव मख'नांगोन जे बेवहाय थानाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजोनि हारि माहारिफ्रा बे जायगायाव गावबा गावनि सिनायथि आरो गावबा गावनि माखासे मोनथायखौ लानानै आरो जायगानि दावगाखांनायनि थाखाय गोबां बोसोर सोमावसारबोगासिनो दङ आरो बे सोमावसारनाया लासै लासै मोनसे हिंस्र रूप लाबोदों आरो बेनि गेजेरजों गोबां माखासे हाथियार दैग्रा आफाद बा आर्म्स हमनानै आन्दोलन खालामग्रा आफाद जानानै फैदों आरो बे आफादफोरनि माखासे बिथांमोननि जि सोमावसारारि हाबाफारि बेखौ लानानै बे ओनसोला गोबां समस्यानि मोगा-मोगि जानांदों आरो बे समस्यानि मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा बेफोर ओनसोलखौ दावगाखांहोनायनि थाखाय जेफोर हाबाफारि लानांगौमोन थांनाय 50 बोसोरसोआव खुनु मोजां हाबाफारि लानानै मावनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेफोर ओनसोला दिनै भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजो बायदि दावगाखांनो हायाखै। ओंखायनो बे जायगाखौ जुदि जौगाखांहोनांगौब्ला गिबियावनो जोङो गोसो होनांगोन जे बोरैहाय बे जायगानि जितु उग्रपन्थीनि समस्या इनसार्जेन्सि जि समस्या बे समस्याखौ जोङो बोरैहाय समाधान खालामनो। दिनैहाय बे उग्रपन्थीनि समस्या एबा इनसार्जेन्सि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय भारत सरकारा जोंनि जि नखर बिफान बे नखर बिफाननि दारै कन्टिनिउआस भाबै बिथांमोनजों सिज फायार खालामनानै सावरायबोगासिनो दङ आरो भारत सरकारा बिनि थाखाय इन्टारल'क्युटर बिबानाव माखासे जोंनि माने आगुनि जि अफिसारफोर दं बे अफिसारफोरखौ बिथांमोना थिसनबोदों आरो बिथांमोनखौ थिसननानै दिनै बे सोमावसारारि उग्रपन्थी आफादफोरजों रायलायबोगासिनो दङ नाथाय रायलायबोदोंब्लाबो दिनैसिम खुनु मोनसे जोबथा बेबायदि बुब्लियाव समस्या समाधान जायाखै। सो सर मैं बोरो भाषा में बोल रहा हूँ, ये हमारे भारत के सबसे माने बहुत पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है। ये आसाम में ज्यादातर बोले जाता है, नेपाल में भी बोले जाते हैं और ये एक ऐसा भाषा है हमारे भारत का, ये गौरव की बात है कि दुनिया की जितनी भी भाषा है उस भाषाओं में से ये एक ऐसे भाषा है कि किसी भी चीज को बताने के लिए और किसी भी तरह का किसी भी देखना महसूस करना इसको बताने के लिए इस भाषा में सबसे भी ज्यादा शब्दों है। तो इसे एक बहुत रिच भाषा है लेकिन इस भाषा को हम आज तक मतलब क्या है किसी को बता नहीं पाया और कोई भी इसको रिसर्च करके अब तक निकाल नहीं पाया ये बोरो भाषा मतलब कब से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था। आज से 2000 साल पहले जो लोग रिसर्च किया है उन लोगों ने कहा कि नेपाल की ईस्टर्न साइड और पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी है और उसी के बाद नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के कुछ इलाका में ये भाषा ही सिर्फ एक भाषा था 2000 साल के आगे। तो ये भाषा भारत का एक शेड्यूल का भाषा है और कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना, इसलिए मैं आज बोरो भाषा में यहाँ पर भाषण रखा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले, इसके ऊपर जानने की कोशिश की। तो ये बात है, ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ जो नॉर्थ ईस्ट को लेके हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा उनके भाषण में कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए देश के बाकी राज्यों के साथ एक कदम में ले जाने के लिए इस बार बहुत सारे प्रोग्राम लेके काम करेंगे। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं जो वहां की इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आज 20 साल से भी ज्यादा समय हमारे गृह मंत्रालय ने कुछ ऑफिसरों को रिटायर्ड ऑफिसरों को इंटरलोकेटर नियुक्त करके उनके साथ बात करके आ रहा है। पता नहीं इस 20 साल में क्यों सुलझा नहीं पाया इस समस्या को और इस समस्या को समाधान करने में ये जिनको इंटरलोकेटर किया गया है वही लोग क्या कर रहा है इसके ऊपर गृह मंत्रालय ने मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक वहां की उग्रवादी समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हम देश के जो ये परिकल्पना है इस परिकल्पना के आधार पे जितना भी स्कीम क्यों न लिया जाए इसको वहां पर इंप्लीमेंट करना इतना मुमकिन बात नहीं है। तो ये हर समय डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम अनुरोध करता है जैसे NSN का समस्या है, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन के रखा है लेकिन फाइनल सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है जिसको लेकर नागालैंड में प्रॉब्लम है और ये उग्रवादी लोग उसी दिन अरुणाचल में एक MLA को भी हत्या किया है उसी में से ही, लेकिन वो लोग डिस्कशन में भी है
और हमारी इंटरलोकेटर को यहां तो पता नहीं कि उग्रपंथी वहां उनके साथ बात करते हैं सेटिस्फाइड है कि वो लोग फिर से वहां पर विद्रोह करने जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ग्रेनेड वहां पर ब्लास्ट हो गया। बाद में ये जानकारी मिला और पकड़ा भी गया कि ये जो उल्फा है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ बात किया हुआ है, उसके लिए एक इंटरलोकेटर भी लगाया गया है। तो वो लोग बातें कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर बॉम्ब भी ब्लास्ट कर दिया। ये कितना भयानक स्थिति होगा। जब तक उग्रपंथी अगर जंगल में रहता है, वो लोग अंडरग्राउंड रहता है, तब तक पता चलता है उग्रपंथी कभी भी कुछ कर सकता है। लेकिन जिसके साथ बात कर रहा है और जो लोग आम मतलब क्या है, आम आदमी की तरह हर जगह पे घूम सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। अगर ये इसी तरह का फिर से बमबारी करना शुरू करेगा तो आम आदमी के लिए कितना समस्या हो सकता है, हमारे देश के लिए कितना समस्या हो सकता है। इसी पार्लियामेंट में भी ये लोग अभी आ सकता है। अभी एक एमपी बन के आया है लोकसभा में, नव कुमार सौर्णिया, ये एमपी है। कृपया दूसरे हाउस का उल्लेख करें ना, नाम ले। ओके, मैं उसको उठा लिया उनके नाम को। एक उल्फा का उग्रवादी नेता है, वो 2 बार एमपी सुन के आया है, इसी बार सेकेंड टर्म के लिए सुन के आया है। अभी तक आर्म सरेंडर नहीं किया, वो डिस्कशन पे है। उल्फा, इसको सबको भी पता है। आप लोग होम मिनिस्ट्री से अगर निकल लेगा उसको पता चल जाएगा। तो उल्फा एक एमपी बन गया और उसके जरिए कितना उल्फा पार्लियामेंट तक आकर देख सकता है, तो ये कितना निरापद होगा। मुझे उनके ऊपर मेरा कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो उन लोगों के साथ सीजफायर करके बात कर रहा है, थोड़ा उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका चिंता क्या है, उन लोगों का चिंता क्या है। क्योंकि मैंने कहा कुछ दिन पहले गुवाहाटी में ब्लास्ट किया, और ये जो ब्लास्ट किया है, जिनको पकड़ा गया वो लोग शिकार भी किया, ये जो प्रोतक उल्फा है उनका एक सदस्य है, सिर्फ एक ही नहीं 2-3 सदस्य है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो मैं अनुरोध करता हूं सरकार को इस विषय को गंभीरता से ले और उसी समस्या को समाधान करे। ये नहीं है कि हम सिर्फ इसको विरोध में आर्मी या कोई पुलिस लगाएंगे, लेकिन वही लोग क्या मुद्दा उठा रहा है इसको बात करके समाधान करना है। क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत करोड़ों रुपए उसके लिए इंटरलोकेटर लगा के खर्चा कर रहा है। जो इंटरलोकेटर लोग है वही लोग एक ऑफिस ले लिया है, 5 से कर्मचारी उनके साथ है, वो सारे नोटिस हर समय जा सकता है, इसके लिए फ्री है कॉस्ट। 5 स्टार में वो रह सकता है, नो प्रॉब्लम। इतना तो हमारे सरकार ने जिम्मेदारी दिया उग्रवादी समस्या समाधान करने के लिए। लेकिन 2, 3, 4 ये इंटरलोकेटर सेंस होते जा रहा है, लेकिन ये NSN, उल्फा, NDB, किसी भी उग्रपंथी संगठन का समस्या समाधान नहीं हुआ है। तो ये सीरियस है, इसलिए मैं इस विषय को लाया हूं। नॉर्थ ईस्ट को हमको डेवलप करना है और उसके लिए वहां का जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है इसको हल करने के लिए हमको व्यवस्था लेना चाहिए। तो ये मेरा सिर्फ सजेशन है। इसके साथ फ्लड का एक प्रॉब्लम है हमारे माने असम में। असम एक ऐसा छोटा सा मैदानी जगह है, वैली है, जो सराउंडिंग पहाड़ से घिरा हुआ है। तो जब भी बारिश देता है इतना मतलब पानी आके जम जाता है, हर साल फ्लड होता है सर। तो हम अगर ऐसा फ्लड होता है तो हम बोलता है ये प्राकृतिक दुर्योग है, लेकिन असम का हर समय होता है, हर साल होता है। You have only 2 minutes more. Please conclude now. ओके, नो प्रॉब्लम। तो वहां पर जो हालत होता है हर साल होता है सर, इसलिए यहां से दिखाई नहीं जाता है कि यह प्राकृतिक दुर्योग है। इसको हमारे राज्य सरकार संभाल नहीं सकता है, वहां में रिलीफ दे नहीं सकता है, लोगों को रिहेबिलिटेशन दे नहीं सकता है। पहाड़ से इतनी 300-400 स्पीड किलोमीटर में पानी बह के आता है कि सारे घर जमीन इरोशन करके ले जाता है सर। तो इसके लिए केंद्रीय सरकार को हर समय वहां से लोग अनुरोध कर रहा है कि इस समस्या को नेशनल प्रॉब्लम के हिसाब से मर्यादा देके टेक्निकली, फाइनेंशियली कैसे कर सकता है, असम के लोगों को मदद करना है, असम की इस प्रॉब्लम का समाधान करना है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि असम के ये जो फ्लड प्रॉब्लम है, बाढ़ का जो समस्या है, इसको राष्ट्रीय समस्या की मर्यादा देकर राष्ट्रीय की तरफ से ही जिम्मेदारी ले, क्योंकि राज्य सरकार इसको संभाल नहीं पाता है सर। तो यही है। तो आंगनी बुंगनांगो बात बेखिनि मेरा जो कहना है वही है। तो मैं अनुरोध करता हूं ये सारे बातें जरूर हमारे सरकार
करेंगे। और मैं समर्थन करता हूं राष्ट्रपति जी के भाषण को, और राष्ट्रपति जी ने जो भी कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे देश बहुत आगे बढ़ सकता है। Thank you. बेखिनिखौनो बुंनानै आं चेयारमेन बिथांखौ बुंनो खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। Thank you.